morning, students. Myself Ankur Badwar, and this is the weekly quiz that I promised that I will start for first week of May 2020. Okay, I promised you that I will be making quiz for April soon. That will be coming. That is on the way. I'm preparing side by side. So this is first week of May. As you know, the week starts from Saturday to Sunday to Saturday. So 3rd of May was Sunday, so it will cover 1st and 2nd May only. Okay, and the quiz and the video for the 2nd week of May is coming tomorrow. Likely it may come today evening only. So let's start the questions one by one. If what I will be doing, as I told you in the Telegram group, that I will be giving you 15 seconds to answer each questions in the live chat box. Okay, 15 seconds in the live chat box. Then I will be proceeding. Then I will be discussing about that question, why it came, from which current affairs it came, and what other questions can come. And then I will move on to next question. And again for next question, I will be giving you 15 seconds to respond. Okay, so 15 seconds for each question. So hoping you are well, preparing for your upcoming exams in this time of crisis. Let's start. The first question is coming. The time starts now. 5 seconds. 10 seconds. 15. Stop. So the question was, the current limit to allow tap and go functionality on card payment is. So these are the options. The answer, as you guessed right, it is 2000, which has it is earlier was 2000, now it is none of the above. Now there is no limit. Earlier there was 2000 was the limit for tap and go functionality, which was introduced by RBI, Reserve Bank of India. Now RBI has removed the limit so as to promote contactless payments system card में and it also consists two-factor authorization. As I promised you that I will be telling you, मैं आपको बताता रहूँगा कि कहाँ से ये क्वेश्चन बनता है. So let's go back to my PDF और उस वीडियो जो PDF की मैं वीडियोस वीकली बना रहा हूँ उसमें मैं ऑलरेडी बताता रहता हूँ कि क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, which kind of MCQ can be formed. So let's go back. Let's see. Yeah, this is May 1st week PDF. दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम दिस, ऑल पेमेंट विया कार्ड्स कैन नाउ बी कॉन्टैक्ट फ्री. इसमें मैंने आपको पूरा वीडियो में भी बताया था. दिस इज़ द PDF, आई हैव गिवन इट टू यू. इसमें सी इट हेयर इवन फॉर परचेजेस, जस्ट वेट, see here, even for purchases exceeding current limit of 2000. Okay, initially the limit was 2000, now there is no limit. So I have made the question from this. So they can also as I told you in the video, देखो मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ इस करंट अफेयर्स की. आई विल बी मेकिंग द PDF एंड देन आई विल मेकिंग द वीडियोस ऑफ द वीकली करंट अफेयर्स. एक या दो, यूजली 2 या 3 पार्ट्स में बन रही है. एंड देन आई विल मेकिंग द क्विज वीडियो. ओके, तो जो वीडियोस है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन वीडियोस में मैं बताता हूँ कौन से क्वेश्चन हर एक करंट अफेयर्स में से बन सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं है, कौन सा डाटा आपको रखना है, कौन सा डाटा आपको नहीं रिटेन करना है. ओके, सो इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है. दिस हैज़ बीन फ्रॉम दिस. अदर क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको इन वीडियोस में बता चुका हूँ. सो अगर आपको इस करंट अफेयर में से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखना. सो गो थ्रू दोज वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल इन द प्लेलिस्ट विच हैव शेयर्ड इन द टेलीग्राम ग्रुप आल्सो, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो प्लेलिस्ट है. सो लेट्स गो बैक टू द quiz. So this was the first question. Now I will be starting with the second question. So your time starts now. 5, 10,
15. Stop. So 15 seconds are over to answer this question. Some have answered it correctly. The question is, the current foreign reserves in India is approximately 480, 4800. These were the options, and the correct answer is $480 billion. So it is approximately around 11, greater than 11 months of import cover. Okay, import cover I have explained you in great details in the April current affairs. Do check the videos if you haven't gone through. import cover क्या होता है कि जैसे मान लो जो भी इंडिया का import bill है, फॉर एग्जांपल लेट्स से जो इंडिया का import bill है लेट्स से 100 बिलियन डॉलर्स है, जो भी इंडिया टोटल इंपोर्ट करता है, लेट्स से पर ईयर 400 ले लेते हैं, इसके आसपास ही है। तो ये हमारा इंपोर्ट बिल है, ओके, $400 मिलियन। नाउ अगर मैं बोल रहा हूँ 480 बिलियन मेरे रिजर्व्स है, सो वो उसको कैलकुलेट करते हैं कि जो दीज आर अप्रोक्सीमेटली 11 to 12 मंथ्स। अगर इसमें भी आप देखोगे तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि हमारे फ़ोन रिजर्व्स आने बंद हो जाती है और हमारा इंपोर्ट कवर जो इंपोर्ट बिल है वो उतना ही रहता है, तब भी हम तकरीबन एक साल, दैट इज़ 12 मंथ्स के आसपास का हम इंपोर्ट कर पाएंगे। दैट इज़ इंपोर्ट कवर। सो क्वेश्चन उसमें भी बन सकता है, इंपोर्ट कवर क्या होता है, करंटली इंडिया का इंपोर्ट कवर क्या है। क्वेश्चन कैन बी ग्रेटर दैन 6 मंथ, ग्रेटर दैन 11 मंथ, ग्रेटर दैन 2 ईयर, ग्रेटर दैन 5 ईयर्स। क्वेश्चन कैन बी मेड फ्रॉम दैट आल्सो। मैं पहले जो आपके करंट अफेयर्स वीकली वीडियोस उसमें बता चुका हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेगा, अप्रैल की वीडियोस में था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ 480 बिलियन, ऑप्शन ए। ओके, सो आप क्या करना है, एट दी एंड टोटल करते जाना, जितने भी क्वेश्चन होंगे उनका टोटल करना है, एंड टेल मी दी मार्क्स इन दी कमेंट सेक्शन और दी लाइव चैट। लेट्स सी हु टॉप्स दी क्विज, वीकली क्विज। ओके, तो क्योंकि इसमें सिर्फ फर्स्ट और सेकंड में गया तो इसमें क्वेश्चन थोड़े कम होंगे, बट जो वीकली क्विज मैं बनाऊंगा उसमें अप्रोक्सीमेटली मैं अराउंड 30 क्वेश्चंस मैं पर वीक आपको दूंगा। सो 5 वीक्स है टोटल, इस अप्रोक्सीमेटली ग्रेटर देन 100 और 120 क्वेश्चंस आपके पर मंथ मैं आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए, एंड दैट विल बी रेलिवेंट फॉर बोथ फेज 1 एंड फेज 2 एंड विल बी एग्जैक्टली ऑन द पैटर्न ऑफ द लास्ट 4 to 5 ईयर्स ऑफ आरपी ग्रेड बी, नेवी, सेबी एंड नाबार्ड। कोई आलतू फालतू के क्वेश्चंस नहीं होंगे जो आपके लिए रेलिवेंट नहीं होंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन जैसे मैंने आपको बोला कि आपको 15 सेकंड मिलेंगे इसको आंसर कर। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। India's foreign exchange does not consist of A. Foreign currency assets, gold reserve, SDR, silver reserve, reserve tranche. 12 seconds. 15. Stop. So this was the question. India's foreign exchange does not. Remember, does not. क्या नहीं होता इंडिया फोरेन एक्सचेंज में, तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ ये क्वेश्चन कहाँ से बना है। लेट्स गो बैक टू दैट करंट अफेयर्स। ओके, सेकंड क्वेश्चन का मिस हो गया, उसको भी देख लेते हैं एक बार। सी, सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बना था आपका, फॉरेक्स रिजर्व फॉर 130 मिलियन टू 479.45 बिलियन, दैट इज अप्रोक्सीमेटली $400 बिलियन। सेकंड क्वेश्चन जो आपका एमसीक्यू था वो इस करंट अफेयर्स में से बना था। नाउ इसी में आप देखोगे फॉरेन करेंसी एसेट्स विद आरबीआई नाउ स्टैंड्स एट 441.56 बिलियन, वाइल गोल्ड रिजर्व at 25.15. Other components include SDR and reserve provision, that is reserve tranche 1.2 billion and 2.78 billion respectively. So हमारे फोन रिजर्व में ये 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, that is foreign currency assets, gold reserves, SDR and reserve position और reserve tranche। ये मैंने आपको करंट अफेयर्स वीडियोस जो फर्स्ट वीक ऑफ मे की बनाई थी उसमें भी मैंने डिटेल में बताया था, और मैंने बताया था कभी भी कैसा भी क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है, और उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है आपका। दिस वन, इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज डज नॉट कंसिस्ट ऑफ, दिस इज सिल्वर रिजर्व्स इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप yes, as I am seeing in the comment section, most of you have answered it right, as well as in this question I also gave in the quiz, daily quiz which I am providing you in the telegram के अंदर मैं आपको डेली 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन फेज़ 1 में से और 2 क्वेश्चन फेज़ 2 में से। उसके अंदर भी मैंने ये क्विज़ आपको दिया था, ये क्वेश्चन आपको दिया था। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3।
गुड गोइंग, कीप इट अप, ऐसे ही आप सही आंसर देते रहो। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन 15 सेकेंड्स मिलेगा आपको इस क्वेश्चन को भी आंसर करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। 5, 10, 15, stop. Okay, these, yes, some of you have answered correctly, very good. So let's see. The United States Agency for International Development. Now first of all, it is not so much an important agency, but हाँ सेबी का एग्ज़ाम 4 जुलाई को है, हो सकता है पूछा जाए, बट आरबीआई में चांस कम है। अगर हाँ ये एजेंसी फिर मान लो आरबीआई का एग्ज़ाम अक्टूबर में होता है और सितंबर और अगस्त में ये एजेंसी फिर से रिपीट होती है करंट अफेयर्स में, देन इट कांट बी। तो इसका हेड क्वार्टर आपको बताना था। द आंसर इज वाशिंगटन डीसी, यूएस। ओके, सो मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड इट राइट। एंड कहाँ से बना है, लेट्स गो बैक टू दी वीकली पीडीएफ। और ऑलरेडी मैं वीकली वीडियोस इसकी बना चुका हूँ, उसमें मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सो इस पर क्या क्या और क्वेश्चन बन सकता है वो मैं बता देता हूँ। ये फिगर नहीं आएगी, इट इज़ नॉट सो रेलिवेंट। ओके, एक तो ये हेडक्वार्टर्स और दूसरा किसके अंडर ये फंड यूटिलाइज किया जाएगा, पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गेटिविटी। ये प्रोजेक्ट के बारे में भी आपके एमसीक्यू पूछा जा सकता है। हालांकि मैंने इस पर अभी एमसीक्यू नहीं बनाया, बट कभी पूछा जा सकता है आपका। ओके, तो लेट्स गेट बैक, यही क्वेश्चन बन सकते हैं इस करंट अफेयर्स में से। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। सो वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 नाउ, दैट विल बी ऑफ अगेन 15 seconds you will get to answer that question. So just wait. The time starts now. 5, 10, 15, stop. So the question was is the We Will Win campaign as a tribute to health worker have been recently launched by, it is from sports subfolder, and that is subfolder number 2. As you know, I have divided the entire current affairs into 15 subfolders, so as you can retain it maximum or you will be able to revise it properly or quickly when it matters the most, that is just before the examination. अगर आपने सब पार्ट में डिवाइड कर रखा हो, आपको बहुत आसानी होगी इसको रिवाइज करने में, अदरवाइज आपको बहुत मुश्किल होगी इसको रिटेन करने में। सो द करेक्ट आंसर इज फीफा। ओके, फीफा फुटबॉल फेडरेशन हैव लॉन्च दिस। ये आई थिंक लैटिन नेम है या फ्रेंच नेम है, इसका फुल फॉर्म जो होती है, बट फीफा इज द इंटरनेशनल फुटबॉल बॉडी दैट हैव लॉन्च दिस कैंपेन एंड मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड इट करेक्टली। ओके, कहाँ से आया, लेट्स गो बैक टू दिस स्पोर्ट्स सब फोल्डर आपका 2.5, उस सब फोल्डर में आप देखोगे वी विल विन कैंपेन लॉन्च्ड बाय फीफा टू पे ट्रिब्यूट टू द हेल्थ वर्कर्स, ये यहाँ से आया। ओके, मुझे कमेंट सेक्शन में लाइव चैट में नहीं, अभी क्विज दो, उसके बाद कमेंट सेक्शन में बताना इसके फीफा के हेडक्वार्टर्स का है, ठीक है। सो लेट्स गो बैक टू द क्विज। वी विल नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. Okay, again you will get 15 seconds, so get ready, your time starts now. 5, 10, 15, stop. So the question is, who implements Prime Minister's Employment Generation Program PMEGP? नाउ ये क्वेश्चन मैंने दिया था आपको क्विज में भी, जो टेलीग्राम पे मैं डेली क्विज डाल रहा हूँ, और मैक्सिमम मेजोरिटी ने इसका गलत आंसर दिया मेरे को। मैक्सिमम मेजोरिटी हैज़ गिवन दी रॉन्ग आंसर। और एक चीज़ और बता दूँ, जो मैं आपको क्विज दे रहा हूँ दैट इज़ अनोनिमस। ओके, उसमें किसी का भी आंसर पता नहीं चलेगा, तो कोई भी अगर कोई अपना भला चाहते हो, कोशिश मत करना कि इंटरनेट से देख के उसको आंसर करे, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान आप अपना ही कराओगे। और कोई इंटरनेट से देख के अगर सही आंसर दे भी देगा तो किसी को पता नहीं चलने वाला कि आपने सही आंसर दिया है या आपने दिया किसी और ने दिया है, बिकॉज इट इज़ अनोनिमस।
तो प्लीज़ उसको यूटिलाइज करो। दीज आर वेरी गुड क्वेश्चन विच आई एम मेकिंग। मैं खुद बना रहा हूँ आपके लिए, कहीं से कॉपी पेस्ट भी नहीं कर रहा, एक आध कहीं पे कर लिया, बट मोस्टली आई एम मेकिंग दिस क्वेश्चन फॉर यू। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आरबी ग्रेड भी सीबी नबार्ड में आएंगे। सो मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ इट। ठीक है, सीधा आओ, देखो और आंसर करने की कोशिश करो विद इन 5-10 सेकेंड्स। दैट शुड बी स्ट्रेटेजी। गलत हो गया, डजेंट मैटर, बेटर टू ट्राई, सो दैट अगर गलत भी हुआ आप उसको रिवाइज करोगे, देखोगे क्या सही आंसर है। जब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया यू विल बी एबल टू आंसर इट करेक्टली। दैट व्हाट मैटर्स द मोस्ट। ओके, आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग टू यू। लेट्स रब इट ऑफ। सो द करेक्ट आंसर इज दिस वन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ओके, सब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड इट रॉन्ग। और यहाँ पे भी लाइव चैट में कईयों के सही आए हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ, बट स्टिल यू नीड टू डू सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस जब भी आपकी कोई स्कीम आती है कि कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आ रही है। सो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर ESI एग्जाम फेज 2 के लिए। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6 क्विज का। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। अगेन 15 सेकेंड्स आपको मिलेंगे, सो बी रेडी फॉर दैट। योर टाइम्स ओके, ये आया कहाँ से एक बार मैं ये बता दूँ। दिस हैज़ कम फ्रॉम, वी विल मूव टू करंट अफेयर। ऑलरेडी मैं ये वीडियोस तो बना ही चुका हूँ, उसमें बता ही देता हूँ। या दिस इज सफल दी पोर्टल स्कीम्स एंड कैंपेन डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लियरेंस नॉर्म फॉर MSME रिलैक्स्ड। ये मैंने डिस्कस किया था वीडियो में आपका, इसमें ये स्कीम की बात आई थी। उसमें ये मैंने कहा था इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है कि कितने तक का मैन्युफैक्चरिंग के लिए मिलता है लोन, इसमें कितना बिजनेस और सर्विस सेक्टर के लिए मिलता है। तो देखोगे कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए 25 लाख तक का लोन मिल सकता है इसमें, और बिजनेस एंड सर्विस सेक्टर के लिए यू कैन गेट अ लोन ऑफ अबाउट 10 lakhs ऑफ रुपीज़। और उसको कौन इम्प्लीमेंट करता है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इस पे से ये मैंने क्वेश्चन बनाया है। और सब्सिडी कितनी मिलती है, 15 to 35% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो ये 4 MCQs बन सकते हैं इसमें से, मैं वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, और इनमें से एक क्वेश्चन मैंने आपको क्विज में दिया। सो दैट्स हाउ यू हैव टू प्रोसीड। इसलिए मैं आपको बता रहा था जो PDF मैं दे रहा हूँ उसके बाद वीडियो को रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो वीकली वीडियोस है, क्योंकि उसमें मैं क्विज की तरह एक क्वेश्चन नहीं, उसमें 3-4 क्वेश्चन हर एक MCQs करंट अफेयर्स में से कई बार बन जाते हैं, और हर एक क्वेश्चन मैं क्विज में नहीं डाल सकता, नहीं तो क्विज के क्वेश्चन ही बहुत सारे हो जाएंगे। और मेरे पास इतने सोर्सेज नहीं है, मैं अकेला घर बैठे, मेरे पास कोई टीम नहीं है, मुझे कंटेंट करना, मुझे वीडियो बनानी है, मुझे एडिटिंग करनी है, बहुत हो जाता है एक वीडियो बनाने में। और आज लॉकडाउन है, घर के भी काम करने पड़ जाते हैं, तो ये सब सबका है। एनीवेज PDF वीडियो क्या कर रहा था मैं, हाँ या इसके में क्या है, जैसे ही मैं आपको वीडियो दूँ वीकली वीडियोस, उसको सबसे पहले एक बार देखो और 1 वीक के बाद उसको रिवाइज करो, नहीं तो आप भूलने लगोगे। दिस इज कॉल्ड रिटेंशन के लिए क्या आपका बेस्ट तरीका है, एक बार जैसे मैंने वीडियो डाली उस वक्त देखो, और 1 वीक के बाद रूटीन बना लो कि हर संडे मैं रिवाइज करूँगा या रिवाइज करूँगी। पिछले वीक की वीडियो भी, नए वीक की वीडियो भी देखोगी, और पिछले वीक की वीडियो रिवाइज करूँगी या करूँगा। That is the best way that I will see the new video, उसकी new PDF I will read, and I will also revise the video and the PDF of the previous week। इस तरह से वो साइकिल जब बनती रहेगी ना, और ये साइकिल अपने RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन तक या सेबी जब भी होता है आपने कंटिन्यू रख ली, ट्रस्ट मी आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो फेज़ 1 और फेज़ 2 के हैं RBI सेबी नबार्ड के, यू विल बी एबल टू आंसर इट विथ क्वाइट प्रिसीजन। बहुत अच्छा स्कोर आ पाएगा आपका। और एंड जब आपका एग्ज़ाम होगा उससे पहले एक बार फिर रिवाइज करना है, एक बार PDF और वीडियो, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल, 3 बार। एक बार तो हो गया जब वीडियो आई और PDF आई, एक रिवीजन तब दो, एक रिवीजन तो उसको अगले वीक, ठीक है। नेक्स्ट वीक जब भी होगा एक बार वीडियो देखो और एक बार PDF देखो। ये वीडियो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन दी उस वीक में करंट अफेयर्स कितना था। और एट दी एंड जब आपका एग्ज़ाम होगा उससे पहले 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले उसको फिर से रिवाइज करो। इस हिसाब से आपकी जो माइंड है उसमें रिटेन रह जाएगी वो जो न्यूज़ है, एंड यू विल एबल टू आंसर इट करेक्टली। और हाँ, ये क्विज देते रहो, उससे भी रिटेंशन में काफ़ी हेल्प मिलती है। सो दैट शुड बी योर स्ट्रेटजी, क्योंकि करंट अफेयर्स का मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि काफ़ी सिग्निफिकेंट पोर्शन है आपके एग्ज़ाम में। जैसे फेज़ 1 में जो आपके 80 मार्क्स है RBI ग्रेड बी की, अगर मैं बात करूँ 80 में से अराउंड 55-60 मार्क्स आपके करंट अफेयर्स होंगे। इनफैक्ट 65 मार्क्स के आसपास आपके करंट अफेयर्स होंगे आउट ऑफ 80 मार्क्स।
फिर आपके ESI में भी आप देखोगे 70 आउट ऑफ 100 मार्क्स आर करंट अफेयर्स। फिर फाइनेंस में भी देखोगे 10 to 20 मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स का जितना फाइनेंस आता है, दीज आर करंट अफेयर्स। सो करंट अफेयर्स के बिना पेपर तो क्वालिफाई कर ही नहीं सकते, ओके। और करंट अफेयर्स करोगे तभी स्टैटिक पढ़ने में मजा आएगा, नहीं तो स्टैटिक भी बहुत बोरिंग लगेगा। और अगर आप स्टैटिक स्ट्रॉन्ग होगा तो करंट अफेयर्स में हेल्प मिलेगी। सो यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग स्टैटिक, होते ना, नींव स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग के ऊपर फिर स्ट्रॉन्ग रहती है। सो स्टैटिक नॉलेज होना ज़रूरी है, बट you have to supplement that with the current affairs, otherwise you cannot clear exam like RBI, SEBI, NABARD. Okay, so let's go back to the quiz now. कहाँ गया ये? या सो 6 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. फाइव, 10, 15, stop. ओके, सो मोस्ट ऑफ यू आंसर्ड करेक्टली, यस। ये मैंने टेलीग्राम में भी दिया था आपको, सो डेली क्विज में दिया था। तो कुछ क्वेश्चन मैंने दिए, कुछ क्वेश्चन नहीं दिए, और ऐसे ही मैं आपको एक आध क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे मान लो मैं वीकली 30 क्वेश्चंस दूंगा, उसमें से 2, 3, 4 क्वेश्चन मैं डेली क्विज में भी दे सकता हूँ। हो सकता है ना भी दूँ, हो सकता है ज़्यादा भी दे दूँ, 5, 6, 7 दे दूँ, तो इस तरह से मैं करूँगा। सो यू शुड सी दिस क्विज वीडियो एंड आल्सो ट्राई टू गिव दैट डेली। जो क्वेश्चंस मैं डाल रहा हूँ वो भी आप देते रहो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। सो ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ, यश हैज बीन लॉन्च जॉइंटली बाय NCSTC एंड DST। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, कहाँ से आया ये मैं बता देता हूँ आपको। वी विल गो बैक टू दी PDF, या See, NCCST and DST यश प्रोग्राम, नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन एंड डिपार्टमेंट DST है नोन दिस। इसमें से एक ही क्वेश्चन बनता है, मैंने आपको जो वीडियो बनाई थी इसके ऊपर उसमें बता ही दिया था ऑलरेडी, तो इसके ऊपर से ये आपका क्वेश्चन बना है आपका क्विज में। ओके, आई होप देयर शुड नॉट बी नो कन्फ्यूजन अबाउट दैट, एंड दिस कैन कम बिकॉज ईयर ऑफ अवेयरनेस की बात करें तो ईयर जो है पूरा आपका अगले साल तक 2021 तक चलेगा, तो बीच में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये कोई डे नहीं है जो अभी आया, ठीक है। मतलब डे का क्या होता है, जो डेज वो ज़्यादा आते हैं, जैसे मान लो अक्टूबर में आपका RBI का एग्ज़ाम है, तो डेज़ के जो ज़्यादा चांसेस है दैट विल बी जो अगस्त या सितंबर में डेज आएंगे। ओह सॉरी, किसी ने देखते मिल गया। एनीवे, अगस्त और सितंबर में जो डेज आएंगे उसमें से मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस पूछा जाएगा। हो सकता है एक आध पीछे से भी आ जाए और पहले के मंथ्स में आ जाए, बट मोस्ट लाइकली अगस्त और सितंबर में से ही पूछे जाएंगे। अभी मैं 2019 की वीडियो लाऊंगा RBI की 8B की स्ट्रैटेजी की, तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। बन चुके हैं ऑलमोस्ट, थोड़े फिनिश करना उसको, कुछ क्वेश्चन आ गया, विल कम सून। सो यस, मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली। वी विल मूव बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट रेडी फॉर दैट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 5, 10, 15, stop. Yes, some of you have answered correctly. So question is, who among the following won Nikkei Asia Prize 2020? Yes, this is an important question which can come in the category of science and technology. The answer is this one, Thallapil Pradeep. Okay, B is the correct option. Where it has came from, we will go back to the PDF. ऑलरेडी मैं वीडियो में बता चुका हूँ। निकी एशिया प्राइज IIT मद्रास प्रोफेसर T प्रदीप सिलेक्टेड। ओके, ये IIT मद्रास से या IIT पंजाब से है, ये नहीं देखना, ओनली नाम याद रखो। और ये याद रखो निक्की प्राइज जीता है और किस कैटेगरी में से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वो किस चीज़ के लिए जीता है प्राइज, दैट इज़ वर्किंग एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड वाटर प्यूरिफिकेशन। ऑलरेडी मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ कि इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, सो लेट्स गो बैक टू दी क्विज। सो 8 क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। अगेन 9th क्वेश्चन आएगा अब, उसके लिए अगेन आपको 15 सेकेंड्स दिए जाएंगे। सो गेट रेडी टू आंसर दैट क्वेश्चन। योर टाइम starts now.
5, 10, 15. Stop. So this is I think a little bit tough for most of you may be answer, but फिर भी काफ़ियों ने सही आंसर दिया है. Which of the following has been granted GI tag recently? That is black rice of Manipur, Gorakhpur terracotta, Kadalai mittai of Kawilpatti. All of the above. None of these were the options. So answer is all of the above. Some of you have answered correctly. कहाँ से आया? Let's go back here. Let's see क्या न्यूज़ थी इसके लिए. I have made this from. देखो हर एक न्यूज़ आइटम से मैंने क्विज में क्वेश्चंस नहीं बनाए. ओके अब ऐसा नहीं है कि ये जो करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके मैं वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है. तो क्विज में मैं सारे कवर नहीं करूँगा. वो जो सारे क्वेश्चंस हैं मैं आपको जो वीडियोज़ बना रहा हूँ करंट अफेयर्स वीडियोज़ जो हर क्विज से पहले आएगी. ओके उसमें मैं सारे क्वेश्चन जो बन सकते हैं रेलेवेंट करंट अफेयर्स में वो मैं आपको बताऊंगा. क्विज में मैं सारे क्वेश्चंस नहीं कवर कर सकता. इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम माय साइड. ऑलरेडी कवरिंग मैं सारा कर ही रहा हूँ. तो आई होप यू विल बी एबल टू डू इट. सो ये क्वेश्चन बना आपका यहाँ से. मणिपुर ब्लैक राइस एंड गोरखपुर टेराकोटा गेट्स GI tag. ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर कॉल्ड चखाओ, गोरखपुर टेराकोटा एंड कदलई मिट्टी ऑफ कोलपुरी बैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग. सो दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट टैग. आर्ट एंड कल्चर में मैं क्लासीफाई करता हूँ इसको क्योंकि इसमें हर मंथ कुछ ना कुछ टैग्स ऐड होते रहते हैं. जैसे बंगाली रसगुल्ला. ओके मुझे याद है कश्मीरी सैफरोन अभी हुआ था अप्रैल में. मैंने वीडियोस में कवर भी किया था आपके PDF में और वीडियोस में. ऐसे ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होते हैं जिनको ये टैग मिलता है. तो उसमें क्या होता है उनके जो एक्सपोर्ट्स होते हैं या फिर उनके प्रमोशन में हेल्प मिलती है उस एरिया के. और एक किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए स्पेसिफिक होते हैं. जैसे बंगाली रसगुल्ला सिर्फ बंगाल में मिलेगी. ओके कश्मीरी सैफरोन सिर्फ कश्मीर में होता है. इस तरह से. ओके फॉर मोर मैंने आपको जो इसमें ESA में मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी. जो ESA के स्टैटिक जो टॉपिक्स हुए थे उसमें मैंने इन्वायरमेंट के अंदर कर कराया था क्लास में जो ऑफलाइन क्लास थी. बट येस जो मैं ESA चालू करूँगा तो उसमें भी कराऊँगा फिर से. सो वी विल मूव बैक टू द क्विज नाउ. यस वी कवर 9 क्वेश्चंस. ओके नाउ विल मूव टू 10th क्वेश्चन. अगेन 15 सेकेंड्स मिलेंगे. सो बकअप टू आंसर दिस क्वेश्चन. योर टाइम स्टार्ट्स now. 5, 10, 15. Stop. So the question is who among the following has released global report on internal displacement. Already मैं आपको the correct answer is IDMC मैंने कहा था. हालांकि इतनी इम्पोर्टेंट बॉडी नहीं है IDMC ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. पर स्टिल क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें. और अभी इसने काफ़ी इंडिया के बारे में भी वो दिया है कि अभी जो माइग्रेशन क्राइसिस हुआ है उसके ऊपर रिपोर्ट दिया. तो इट कैन कम इन सेबी फॉर श्योर एंड इट कैन कम इन योर RBI ग्रेड B. बट ज़्यादा डिटेल्स नहीं आएगी इसमें क्योंकि डिटेल्स इसलिए नहीं आएगी क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बॉडी नहीं है. ओके वर्ल्ड बैंक होता है, IMF की रिपोर्ट होती, WEF की रिपोर्ट होती, तो उसमें डिटेल्स भी आ सकती थी. बट सिंस इज नॉट अ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट तो आएगा तो 1 मार्क कर आएगा ज़्यादा से ज़्यादा. तो लेट्स सी बनाया कहाँ से है मैंने. क्या IDMC ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट. यहाँ से ये क्वेश्चन बना है. जिनेवा बेस्ड है. हो सकता है ये भी पूछ ले. ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं. ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर. प्लीज़ वॉच दैट वीडियो. तो दी फुल फॉर्म इज इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर. ओके इसने ये रिपोर्ट लेके आया है. इसने बोला एज पर द रिपोर्ट 5 million people वर डिस्प्लेस्ड इन इंडिया इन 2019. सो दैट वॉज द रिपोर्ट. सो दैट वॉज क्वेश्चन नंबर 10. सो 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं फॉर दिस वीक क्योंकि इस वीक में सिर्फ 2 डेज थे 1st and 2nd of May. तो इसमें सिर्फ 10 ही क्वेश्चंस मैंने कवर किए. सो टोटल करो आप अपने कि 10 में से आपने कितने सही आंसर्स दिए और मुझे लाइव चैट या कमेंट सेक्शन में नीचे बताओ कि आपका स्कोर क्या रहा. एंड बी ऑनेस्ट. देखो यहाँ पे कोई
कमेंट सेक्शन या उसमें बता के कि मेरे 9 से हो गए, 8 से हो गए, कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप झूठ बोलोगे। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, जो आपका एग्जैक्ट स्कोर बन रहा है वो बताओ। एंड इन द लॉन्ग रन अगर आप डेली क्विज करोगे और डेली क्विज वीकली क्विज वीडियोस देखोगे, वीकली पीडीएफ और वीकली आप वीडियोस देखोगे जो करंट अफेयर्स के बना, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू व्हेन द रियल एग्जाम विल कम। ओके, सो थैंक यू, ठीक है, thank you. This if you please comment, share this video as much as possible, and subscribe if you haven't subscribed to this channel, and click on the bell icon, क्योंकि बेल आइकन अगर आप क्लिक करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी नई वीडियो आ रही है। या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, चैनल को ज्वाइन कर लो, उसमें भी हम इसके लिंक्स डालते रहते हैं वीडियो से पहले। तो दिस इज अंकुर Badwar saying thank you to all of you. Tomorrow or today's evening only, I will be coming out with the second week of May current affairs videos, as well as maybe if possible quiz also, or tomorrow I will making the quiz positively. So thank you once again.